Hello students, welcome to my channel Math Solutions by Hemlata Parihar. Today we will start exercise 2.4 of polynomial. Exercise 2.4 question first is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. You have to determine in which polynomial x plus 1 is a factor. If x plus 1 is a factor of these polynomials, then we have to find remainder. If remainder is equals to 0, then x plus 1 is a factor. If remainder is not equals to 0, then x plus 1 is not a factor of given polynomial. So we have to check in which polynomial remainder is equals to 0. First polynomial is x cube plus x square plus x plus 1. Since x plus 1 is a factor, if x plus 1 is equals to factor, then x plus 1 is equals to 0 and value of x is equals to minus 1. Put the value of x in the given polynomial and we check what is the remainder. X is equals to minus 1 cube plus minus 1 square minus 1 and plus 1. Minus 1 cube is minus 1. Minus 1 square is plus 1, plus minus minus and plus 1. Minus 1 cube minus 1 and plus 1 cancel, minus 1 plus 1 cancel. So our remainder is 0. Then since remainder is equals to 0, therefore x plus 1 is a factor of given polynomial. Okay, since remainder equals to 0, so we write x plus 1 is a factor of given polynomial. If remainder is not equals to 0, then we have to write x plus 1 is not factor of this polynomial. Now in question second, we check in this polynomial remainder is what, 0 or not. Then x plus 1 is a factor of polynomial. Therefore, x plus 1 is equals to 0 and x is equals to minus 1. Put the value of x in the given polynomial. Minus 1 power 4, minus 1 cube, minus 1 square, minus 1 and plus 1. Minus 1 power 4 is equals to plus 1. Minus 1 cube equals to minus 1. Minus 1 square equals to plus 1 and plus minus minus and plus 1. Plus minus minus plus minus minus cancel. So our remainder equals to 0. Remainder equals to 1. Since remainder is not equals to 0, therefore x plus 1 is not a factor of given polynomial. Remainder is not equals to 0, so we have to write x plus 1 is not a factor of given polynomial. Now in question third, we have to write the same statement. X plus 1 is a factor, therefore x plus 1 equals to 0 and x equals to minus 1. Put the value of x in the given polynomial. Minus 1 power 4, 3 into minus 1 cube, 3 into minus 1 square, minus 1 and plus 1. Okay, minus 1 power 4 equals to plus 1, minus 1 cube equals to minus 1, minus 1 square equals to plus 1, plus minus minus 1 and plus 1. माइनस 1 प्लस 1 कैंसल. नाउ यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको. प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3 और यहाँ रिमाइंडर यहाँ कैंसिल हो गया. माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल. सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 1. सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर of polynomial. Okay,
Question number 4, polynomial x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2. We have to check x plus 1 is factor or not. First find the zeros. Since x plus 1 is a factor, therefore x plus 1 equals to 0, x is equals to minus 1. Put the value of x in the given polynomial. Minus 1 cube minus 1 square 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. Minus 1 cube equals to minus 1. Minus 1 equals square equals to plus 1, but here is minus 1. Minus into minus plus 2 1 2 plus root 2 and plus root 2. Okay, now minus 1 minus 2 plus 2 plus root 2 plus root 2. Minus 2 plus 2 cancel. Root 2 plus root 2 equals to 2 root 2. Here remainder is not equals to 0. Therefore remainder is not equals to 0. Therefore x plus 1 is not a factor of polynomial. Okay. Question second is, use the factor theorem to determine whether gx is factor of px. आपको यहाँ पर चेक करना है कि gx इस px का फैक्टर है या नहीं. यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट था वैसे यहाँ पर भी करना है कि gx में से हम पहले जीरोस फाइंड करेंगे इफ़ और इस जीरोस को हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल px में, और अगर हमारा आंसर मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि यस gx इज़ फैक्टर ऑफ px, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आप कहोगे नो gx इज़ नॉट फैक्टर ऑफ px. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, gx का जीरोस फाइंड करेंगे. x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1. पुट द वैल्यू ऑफ x in polynomial. पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 पुट कर रहे हैं. p माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1. माइनस 1 क्यूब करना है तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, फिर ये माइनस 2 और माइनस 1 और माइनस 1. अभी हमने सिर्फ क्यूब और स्क्वायर किया है. 2 1 जा 2 और माइनस का साइन आएगा, फिर ये प्लस 1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और माइनस 1. अब माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, सो gx इज फैक्टर ऑफ px. Since r equals to 0, therefore x plus 1 is factor of px. Okay? इसी तरह से आपको क्वेश्चन सेकंड में करना है. सेकंड में भी हमको जो gx गिवन है उसको इक्वल्स टू 0 करके हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 2. पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन पॉलिनोमियल px. p माइनस 2 क्यूब 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 1. माइनस 2 का करेंगे क्यूब तो माइनस 8, माइनस 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 और 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 1. माइनस 6 और माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 और माइनस 8 को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 13, माइनस 14 मिलेगा, और 12 प्लस 1 13. रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस 1. Since r is not equals to 0, therefore x plus 2 is not factor of polynomial px. Okay? Now question third, px equals to x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx equals to x minus 3.
First find zeros. X minus 3 equals to 0, x equals to 3. Put the value of x equals to 3 in polynomial px. p x की वैल्यू 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 प्लस 6. 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36 minus 36 equals to 0. Since remainder equals to 0, therefore gx is factor of px. इस तरह से आपको किसी भी फैक्टर को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं आपको चेक करने के लिए रिमाइंडर फाइंड करना है. रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो आपको होगा कि यस, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नो. ओके. Question third is find the value of k if x minus 1 is a factor of px. अब क्वेश्चन थर्ड आपको क्या कहा है कि x minus 1 फैक्टर है, आपको चेक नहीं करना है. फर्स्ट और सेकंड हमने चेक किया था कि इसका फैक्टर है या नहीं. अब आपको बोल दें कि x minus 1 इसका एक फैक्टर है, तो डायरेक्ट हमको x minus 1 से 0 फाइंड करके और x की वैल्यू पुट करके हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जीरोस फाइंड करेंगे. x minus 1 is a factor, therefore x minus 1 is equal to 0, x equals to 1. ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू. x की वैल्यू हम हमारे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. p1 equals to 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो 1 प्लस 1 प्लस k, और यहाँ पे हमें इक्वल में क्या मिलेगा 0, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए. तो 1 प्लस 1 2, तो k इज इक्वल टू प्लस 2 जो इधर जाएगा तो k इक्वल्स टू माइनस 2 हमारा आंसर. ठीक है. इस तरह से आपको अगर फैक्टर गिवन है और k की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा तो ऐसे करना है. ऐसे क्वेश्चन सेकंड में भी आपको यही करना है. x minus 1 is a factor, therefore x minus 1 equals to 0 and x equals to 1. Put the value of x in polynomial p1 equals to 2 1 square plus k into 1 plus root 2, और यहाँ पे इक्वल में क्या लिखेंगे हम 0, 2 1 जा 2 plus k plus root 2 equals to 0. k is equal to minus root 2 and minus 2. माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन तो 2 रूट 2 प्लस 2 या 2 प्लस रूट 2, ये हमारा आंसर. जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो हम वहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लेंगे. थर्ड क्वेश्चन, सिंस x minus 1 is a factor, therefore x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Put the value of x in polynomial p1 equals to k into 1 square root 2 into 1 plus 1. k minus root 2 plus 1 equals to 0. Then k equals to minus root 2 इधर आएगा तो plus root 2 और plus 1 इधर आएगा तो minus 1. k equals to root 2 minus 1. Similarly, question 4, x minus 1 is a factor of polynomial, therefore x minus 1 equals to 0 and x equals to 1. Put the value of x in the given polynomial p1 equals to k into 1 square, k 1 square 3 into 1 plus k, k minus 3 plus k equals to 0. k plus k 2k minus 3 इधर आएगा आगे तो प्लस 3, k equals to 3 upon 2. जो मल्टीप्लाई में था 2 वो इधर जाएगा डिवाइड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से k की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज. इंपॉर्टेंट पार्ट फैक्टराइज करना है आपको पॉलिनोमियल्स को, और यहाँ पर इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं.
सबसे पहले किसी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करने के लिए आपको मालूम कैसे चलेगा उसके कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 कितने फैक्टर्स होंगे। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, इसका मतलब कि इसके 2 फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर सभी के 2 फैक्टर्स होंगे। अब करते कैसे हैं वो देखो, जो हाईएस्ट पावर है उसका मल्टीपल 12 और जो लास्ट में जो कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई 12 पंजा 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब हम इस 12 के ऐसे फैक्टर्स करें कि हमारे पास में आ जाए -7। तो 12 के फैक्टर्स करके बताओ आप, तो 2 6 जा 12, लेकिन 2 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 8। हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। फिर 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 करने पर हमको मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल रहा है और 3 और 4 को प्लस करने पर 7 भी आ रहा है। अब यहाँ पर 7 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए -7 चाहिए। इसलिए हम -3 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आएगा ही आएगा, और -3 और -4 को ऐड करने पर हमको क्या मिल जाएगा -7। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स करने हैं और इन फैक्टर्स को आपको अपने पॉलिनोमियल के अंदर सेट करना है। यहाँ पर इस -7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे -3x -4x और साथ में आ जाएगा अब +1। अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, इन फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन है एक तो 3 और एक है x। 3 4 जा 12 x -1। ओके, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है और यहाँ पर जो साइन है वो साइन तो लगाना ही लगाना है। और अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो आपको लेना है 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में ये नंबर्स एज इट इज़ आएंगे। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ अगर माइनस होता तो मैं प्लस लिखती और अगर यहाँ प्लस है तो आपको क्या लिखना है माइनस, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड स्टेप क्या होगी, कॉमन लेने के बाद में ये जो 2 ब्रैकेट्स होंगे ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो आप समझ जाना कि आपने जो फैक्टर्स किए हैं वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, 4x -1 एंड 3x -1। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। अगर यहाँ से और आगे करना है, हमें ज़ीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 4x -1 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार 3x - 0, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से 4x = 1, x = 1/4, ये हो गया हमारा फर्स्ट ज़ीरोज़। इधर से 3x = -1 इधर आएगा तो +1, x = 1/3, ये हमारा सेकंड आंसर। इस तरह से हमें किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और बीच में चाहिए हमें 7। तो 3 और 2 को प्लस करने पर तो 5 आ रहा है, हमको तो 7 चाहिए। अब क्या करें, अब 6 और किन किन नंबर्स में आता है, एक तो 2 की टेबल में आता है, एक 3 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है 6 खुद की टेबल में भी आता है। तो यहाँ से हम 6 को हम 6 1 जा 6 भी लिख सकते हैं और 6 + 1 करने पर हमको 7 भी मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये वाला फैक्टर राइट होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर वापस हमको ये बीच वाला नंबर मिल जाए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2x² + 6x + 1x लिखो या सिर्फ x लिखो और +3। ठीक है, इस तरह से फैक्टर करने हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 3। यहाँ से इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 और ब्रैकेट में एज इट इज़ +3। अब बाहर यहाँ पे प्लस था तो हमको अंदर साइन चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है, x + 3 और यहाँ से मिला हमें 2x + 1, ये हो गए फैक्टर्स। अब हम 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x + 3 = 0 और एक बार 2x + 1 = 0। x = +3 इधर जाएगा तो -3
और इधर से 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे आंसर्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन थर्ड करना है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर हमारा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा 6 6 36। हमको चाहिए 5। 6 × 6 करने पर 36 आ रहा है, हमें चाहिए 5। अब हम क्या करें? अब 5 लाने के लिए हम 36 किस किस के टेबल में आता है? तो यहाँ पर देखो 6 तो आ चुका है, 4 9 36 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 4 9 36 लिखें तो हमें दिख रहा है कि 4 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर माइनस का साइन था तो -36 भी आ जाएगा, और -9 और +5 या फिर 9 - 4 करने पर 5 भी आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस लेने की वजह से हमारा क्या आ रहा है? माइनस का साइन भी आ रहा है। तो यहाँ फैक्टर्स हो गए हमारे 6x² + 9x और -4x। ये 4 माइनस का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -36 और 9 - 4 करने पर 5 और ये -6। कॉमन लेना है इन दोनों में से, एक तो x और 3। 3 2 6 और 3 3 9, और x तो बाहर चला गया तो कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों में से एक तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, और एक 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2x, और माइनस का साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद में हमको मिलेगा, यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो हमको क्या मिलेगा? 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, 2x + 3, इधर से 3x - 2। एक बार 2x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार 3x - 2 को भी 0 के इक्वल करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू +3 इधर आएगा तो -3, x इज इक्वल टू -3/2। इसी तरह से यहाँ पर 3x इज इक्वल टू इधर आएगा तो +2, x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे फैक्टर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² - x - 4। फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल रहा है -12। 3 × -4 किया हमने तो हमको मिला -12। हमें चाहिए माइनस का 1, तो देखो -4 और +3 करने पर -1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर -12 था। तो हमारे फैक्टर कुछ नहीं करना पड़ा, यही फैक्टर्स है हमारे। 3x² - 4x और +3x - 4। इन दोनों में से x कॉमन, तो 3x - 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 1, और ब्रैकेट में एज इट इज़ 3x - 4। 3x - 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x + 1। एक बार 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। इसी तरह से x + 1 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू -1। हमारे दोनों आंसर से x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इक्वल्स टू -1। तो इस तरह से आपको किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने होंगे।